Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss linear programming problem chapter exercise 3a. Already I discussed in my previous video from the question number 1 to 8. Now I will discuss question number 9. The question given: special purpose coins each weighing 10 grams are to be manufactured using two basic metals M1 and M2, okay, and a mix of other metals M3. Okay, now that is M1, M2 and M3 cost रेस कितना है, प्राइस 500, 800 and 50 per gram respectively. Okay, यहाँ पे given the strength of the coin demands that not more than 7 gram, that more than कितना है 7 gram. Are you getting my point? More than 7 gram of M1 and minimum of 3 gram of the M2 should be used. The amount of M3 in each coin is maintained at 25% of the M1. Since the demand of the coin is related to its price, formulate the LPP, find the minimum cost of the coin. यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज मिनिमम कॉस्ट ऑफ द कॉइन का मिनिमम कॉस्ट कितना है उसको आपको निकालना पड़ेगा. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस. यहाँ पे जो गिवन मैन्युफैक्चर यूजिंग बेसिक मेटल्स कितना है M1 एंड M2. ओके, बेसिक मेटल M1 एंड M2 एंड मिक्स मेटल दैट इज अदर कितना है M3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज सबसे पहले आपको राइट डाउन द सॉल्यूशन. लेट x ग्राम, ठीक है, x ग्राम ऑफ M1 मेटल के लिए, ठीक है, लेट x ग्राम ऑफ M1 एंड y ग्राम ऑफ M2. ओके, M2 आर यूज टू मेक द कॉइन्स. यस, आर यूज टू मेक coin. Are you getting my point? And next क्या दे रहे हैं आपको, given that and a mixed of other metals कितना है M3. other metals कितना given M3. okay, now according to demand of the coin कितना आ जाएगा x/4. yes or no? mix मतलब कितना आ जाएगा, that is to be demand okay, to be demand of the coin कितना जाएगा x/4 ग्राम of the M3, that means mixed. okay, x/4 that means mixed coin. are you getting my point? gram of M3 to be mixed. okay, next look at this. that is M1, M2 and M3 cost कितना है 500, 800 and 50 per gram respectively. कितना है per gram respectively? M1 के लिए 5 and M2 के लिए 8 and M3 के लिए 50. Are you getting my point? that is the cost of coin कितना आ जाएगा, that is the cost of coin. write down this. the cost of coin, okay, the cost of coin is equal to, that is 500x, are you getting my point, plus 800y. ठीक है, प्लस जो मिक्स आ रहे हैं आपका कितना आ रहा है, दैट इज 50 पर ग्राम रेस्पेक्टिवली. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे 50x/4. ओके, 50x/4. इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, लुक एट दिस. यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट इज 512.5 ऑफ x प्लस 800y. इसको सिंपलीफाई करेंगे तो
which is a minimized, yes or no, that is which is minimum, okay, which is minimum. again क्या दे रहा है यहाँ पे, look at this, again यहाँ पे given the strength of the coin demands not more than 7 gram, okay, not more than 7 gram and of M1 and a minimum 3 gram of the M2 should be used, okay. The amount of M3 each coin maintain 25%. Are you getting my point? That is कितना है जाएगा यहाँ पे, अगेन वेट ऑफ द कॉइन कितना है गिवन, दैट इज 10 ग्राम, यस। अगेन वेट, ठीक है, वेट ऑफ द कॉइन कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 ग्राम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगेन वेट ऑफ द कॉइन ऑफ 10 grams, that is you can write x plus y plus x upon 4 is equal to कितना है 10, yes, is equal to 10। और इसका सिंपलीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे x plus y plus x upon 4, that is you can write 5x plus 4y is equal to कितना है 10, ओके। 5x plus 4y is equal to कितना है 10। ओके, नाउ यहाँ पे जो गिवन और एक कंडीशन क्या है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉइन डिमांड्स दैट नॉट ग्राम, ठीक है, दैट नॉट मोर देन 7 grams, ठीक है, दैट मोर देन 7 grams एंड M1 के लिए, M2 के लिए कितना है, दैट इज 3 grams। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज बाय द क्वेश्चन गिवन यहाँ पे, दैट इज कितना है x1 नॉट मोर देन कितना है 7 gram, ठीक है, एंड y इज नॉट मोर देन कितना है 3 gram। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज x1 लेस देन इक्वल टू 7 एंड x is less than equal to 7 and y is equal to कितना है, less than equal to 3। Are you getting my point? That is in this case the x and y greater than equal to 0, yes or no? Now we can write by the LPP form, okay, we can write the LPP form, that is minimization, ठीक है, minimization z is equal to कितना है 512.55 of x plus 800y, okay, 800y and subject to constant कितना आ जाएगा यहाँ पे, that is 5x plus 4y is equal to कितना है 40। Are you getting my point? Given the 5x plus 4y is equal to कितना है 40, yes। Are you getting my point? That is equal to कितना आ जाएगा 40 and x less than equal to 7 and y less than equal to 3 and x comma y greater than equal to 0। Are you getting my point? This is the linear programming problem. This is the objective function, okay, this is the objective function, this is the subject to constraint, okay, subject to constraint, this is the non-negative restriction. The objective function and subject to constraint and non-negative restriction is called linear programming problem, okay। linear programming problem में कैसे solve करेंगे formulated में, that is the data is given, we apply and convert the given data then by the formulation method, okay, the linear programming problem में आपको convert करना पड़ेगा, okay। Now question number 10, a company produces 3 types of the cloth, that is A, B, C। ध्यान से सुनो, ठीक है, there is a very important question है। The company produces 3 types of the cloth, that is A, B and C। The 3 kind of wool say
red, green and blue are required for the cloth. Okay, 1 unit length of the type A cloth needs 2 meters and red, okay, and 3 meters of the blue wool. 1 unit length of the type B cloth needs 3 meters of red and 2 meters of the green and red and 2 meters of the blue wool. 1 of the unit length of type C. Okay, cloth needs 5 meters of green and 4 meters of the blue wool. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन गिवन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेगा तो आपको समझ जाएंगे आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, द फार्म हैज stock of only 8 meters of the red, 100 meters of the green, okay, and 50 meters of the blue wools. Assuming that income obtained from the 1 unit length of the cloth is 30 and 50 and 40 of the type of A, B, C respectively. Formulate the linear programming problem so as the maximized. यहाँ पे आपका given the question में क्या है, maximized. Okay, a company produced 3 types of the cloth, that means A, B, C, that means red, green or blue requirement the cloth. How to solve this question? Now सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, that is write down the solution. How to solve this? Let x unit of a cloth A, okay, let x unit of cloth A, okay, and y units of a cloth B. लिखना पड़ेगा, x और y मानना पड़ेगा, y units of a cloth B, okay, and z unit of cloth C. Are you getting my point? That is x unit of a cloth A and a y unit of a cloth B and z unit cloth C are to be produced from the available materials to get in maximum income. Okay, to be maximum income, the given data can be, we can write, okay, this is the maximum produce. क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको मैक्सिमम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज मैक्सिमम बेनिफिट कितना है आपको शो करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज सबसे पहले एक टेबल बना लो, आपको समझने के लिए वेरी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज नाउ राइट डाउन द टेबल। That is write down cloth A, okay, cloth A and cloth B and cloth C. Okay, cloth A, cloth B and cloth C. That is आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर रिक्वायर्ड, यस और नो? रेड वूल, ग्रीन वूल, ठीक है, रेड वूल एंड ग्रीन वूल, ओके, एंड नेक्स्ट कितना है, ब्लू वूल। दैट इज यहाँ पे इनकम कितना हो रहा है, दैट इज इनकम, आपको इनकम सोर्स दिखाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड अवेलेबिलिटी कितना रहता है, ठीक है, ये आपका टेबल आ गया। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे गिवन 1 यूनिट लेंथ ऑफ द टाइप ए, टाइप क्लॉथ ए के लिए नीड्स 2 मीटर्स, ओके, of red and 3 meters of a blue wheel. Are you getting my point? Red कितना given 2 and blue कितना given 3. Okay, that is यहाँ पे red है, that is यहाँ पे 2. Are you getting my point? Green नहीं है,
ठीक है, ग्रीन नहीं है, दैट इज ब्लू कितना है 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, 3 meters of red। ओके, नेक्स्ट कितना है 1 यूनिट लेंथ ऑफ द टाइप बी। टाइप बी के लिए कितना है क्लॉथ नीड्स 3 meters ऑफ रेड एंड 2 meters ऑफ ग्रीन एंड 2 meters ऑफ द ब्लू व्हील। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे गिवन 3 meters ऑफ रेड के लिए बी जो है, ठीक है, एंड ग्रीन के लिए कितना है 2 meters एंड ब्लू के लिए कितना है 2 meters। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली नेक्स्ट कितना है दैट इज 1 यूनिट लेंथ ऑफ द टाइप सी। क्लॉथ नीड 5 meters ऑफ ग्रीन एंड 4 meters ऑफ ब्लू व्हील। ठीक है, 5 meters ऑफ ग्रीन एंड 4 meters ऑफ ब्लू व्हील। द फार्म हैज स्टॉक ओनली 8 meters ऑफ रेड एंड 100 meters ऑफ ग्रीन एंड 150 meters ऑफ द ब्लू व्हील। ओके, assuming that the income is कितना है यूनिट ऑफ लेंथ 30, 40 एंड 30, 50 एंड 40। दैट इज क्लॉथ सी में कितना मिलेगा आपको, दैट इज यहाँ पे रेड कुछ नहीं है गिवन, ठीक है, दैट इज यहाँ पे ग्रीन कितना है 5 और ब्लू कितना है 4। यहाँ पे इनकम कितना हो रहा है आपका, दैट इज क्लॉथ ए के लिए कितना हो रहा है इनकम 30, क्लॉथ बी के लिए कितना इनकम 50 एंड क्लॉथ सी के लिए कितना इनकम 40। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो अवेलेबिलिटी कितना है दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे अवेलेबिलिटी आ रहा है कितना है 80, 100 एंड 150 meters। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं आप कितना है 80 meters और 100 meters एंड 150 meters। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टोटल इनकम कितना हो रहा है, ओके, टोटल इनकम कितना हो रहा है, देखो ये टोटल इनकम है, यस, टोटल इनकम यहाँ पे कितना हो रहा है दैट इज 30, ए के लिए 30 एंड बी के लिए कितना है 50 एंड सी के लिए कितना है 40। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज X unit of the cloth A and Y unit cloth B and Z unit of cloth C। Are you getting my point? ठीक है, which is to be maximized product। ओके, that is आप लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल इनकम इज इक्वल टू 30x। ओके, 30x ए के लिए कितना है 30x प्लस 50y and plus 40z। Are you getting my point? Which is to be maximized? Yes, which is to be कितना है तो maximized। Are you getting my point? Okay, now according to question जो given है that is क्लॉथ ए के लिए कितना है 2 और ग्रीन नहीं है और ब्लू के लिए कितना है 3। ठीक है, दैट मीन्स लुक एट दिस, यहाँ पे इनकम कितना हो रहा है 30, यहाँ पे क्लॉथ ए के लिए रेड के लिए कितने हैं 2 और क्लॉथ बी के लिए कितना है 3, क्लॉथ सी नहीं है, दैट मीन्स अवेलेबिलिटी कितना है 8 है, दैट मीन्स लेस देन, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ रहा है, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स यहाँ पे इनइक्वालिटी कितना आ रहा है, दैट इज इनइक्वालिटी दैट इज 2x प्लस 3y। ओके, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू कितना है 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट कितना आ जाएगा दैट इज ग्रीन के लिए कितना आ जाएगा दैट इज x नहीं है, ठीक है, ओनली कितना आ जाएगा 2y प्लस 5z। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 2y प्लस 5z लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। यस और नो? एंड ब्लू के लिए कितना आ जाएगा दैट इज 3x प्लस 2y प्लस 4z लेस देन इक्वल टू 150। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज एंड x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो x एंड y है ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, देन वी कन्वर्ट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, ठीक है, दैट इज सो वी कैन राइट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, linear programming problems that is maximized
आपका क्वेश्चन कितना गिवन, दैट इज टू मैक्सिमाइज इनकम कितना हो रहा है यहाँ पे, दैट इज मैक्सिमाइज्ड जेड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, दैट इज 30x एंड 50y प्लस 40z, ओके 40z एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आ जाएगा आपका कितना है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 80 and 2y plus 5z less than equal to 100 and 3x plus 2y plus 4z less than equal to 150. okay, this is the आपका सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है and x y z, okay, x y z greater than equal to 0. this is the non negative restriction. okay, this is the linear programming problem. are you getting my point? this is your final answer. okay, now question number 11, a person wants to decide the constituents of diet which will be fulfill his daily requirements of protein, fats and carbohydrates, okay, at minimum cost. okay, that means the choice is to be made from the three different types of foods. that yields per unit of these foods are given in the following tables. that means look at this, यहाँ पे आपको गिवन क्या है, फूड के लिए कितना है, F1 F2 एंड F3, ठीक है। प्रोटीन क्या है, दैट इज प्रोटीन आपका F1 के लिए 3, ठीक है, एंड F2 के लिए 4 एंड F3 के लिए कितना है 8, और फैट्स कितना है 8, सॉरी फैट्स कितना है, F1 के लिए 2 और F2 के लिए 2 एंड F3 के लिए 7, एंड कार्बोहाइड्रेट कितना लेते हैं, दैट इज 6, 3 एंड 7, ओके। कॉस्ट पर यूनिट कितना है, F1 के लिए 45 एंड F2 के लिए 40 एंड F3 के लिए 85। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन कितना है 1200, 8 कार्बोहाइड्रेट कितना है 800। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूलेट में शो करना पड़ेगा कितना है, ठीक है। दैट मीन्स ए पर्सन वांट टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट, ओके, जो डाइट है फुलफिल है पर डे जो रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, दैट इज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट ऑफ द मिनिमम कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा। ओके, नाउ द सॉल्यूशन, लेट द डाइट कंटिन्यूअस, ओके, let the diet continuous, sorry, constitute of x unit, okay, x units of F1। are you getting my point? यहाँ पे जो डाइट गिवन है, ठीक है, आपको लेट करना पड़ेगा, क्या है, लेट मान लो x इक्वल टू x यूनिट्स ऑफ किसके लिए, F1 के लिए, ठीक है, एंड y यूनिट्स ऑफ कितना है F2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड z यूनिट्स ऑफ किसके लिए, दैट इज F3, ओके, x यूनिट्स ऑफ F1 and y units of F2 and z units of F3। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको मिनिमम कॉस्ट लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मिनिमम कॉस्ट, ओके। द टोटल कॉस्ट कितना है, दैट इज द टोटल कॉस्ट, ओके, द टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 45x प्लस 40y प्लस 80z। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज F1 के लिए आप x एंड F2 के लिए कितना है y एंड F3 के लिए कितना है z। दैट इज द टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा 45x प्लस 40y एंड 85z, which is to be minimized, yes or no? That is the minimize. Are you getting my point? ओके, नाउ यहाँ पे गिवन प्रोटीन कितना है F1 के लिए 3, F2 के लिए कितना है 4 एंड F3 के लिए कितना है Z।
इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, यस और नो। दैट इज यहाँ पे इनइक्वालिटी, ओके इनइक्वालिटी आ जाएगा यहाँ पे कितना है, दैट इज F1, दैट मीन्स ये किसका है 3x है, x F1 कितना है x, दैट इज 3x प्लस 4y प्लस 8z ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज फैट के लिए कितना है, दैट इज 2x 2y प्लस 7z, ओके 7z ग्रेटर देन इक्वल टू 200। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट कितना आ जाएगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट के लिए 6x प्लस 3y प्लस 7z। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 6x प्लस 3y प्लस 7z, ओके greater than equal to 800, okay so the x y and z greater than equal to 0, always positive है, yes or no, that is always positive। now इसको आप linear programming problem में convert कैसे करेंगे, that is look at this, now you can write, so the linear programming problem, okay the linear programming problem and question given कितना है, that is the minimum निकालना पड़ेगा आपको, okay that is the linear programming problem is the minimization z is equal to कितना है 45x plus 40y and plus 85z, okay 85z and subject to constant कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 8z ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 1000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x प्लस 4y प्लस 8z ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, ओके नेक्स्ट कितना है 2x प्लस 2y प्लस 7z ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एंड 6x प्लस 3y प्लस 7z greater than equal to 800, okay that is x y z greater than equal to 0. This is your objective function, okay and this is your subject to constraint, okay subject to constraint and this is the non-negative restriction. It's called linear programming problem. This is the final answer. Are you getting my point? Okay. Now next question given, a manufacturer produce nuts and bolts, okay a manufacturer produces that is the nuts and bolts, it take 1 hours of work on a machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. Are you getting my point? ठीक है, it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to be produced package on bolts। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी जो है ठीक है मैन्युफैक्चर करता है क्या है नट्स एंड बोल्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ही अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ द 17.5 and per package on nuts and 7 per package on bolts. How many package of each should be produced each day so as to be maximized his profit to he operates his machine for at the most 12 hours a day। मिनिमम एक मशीन के कितना आवर काम करना पड़ेगा 12 आवर्स, ठीक है 12 आवर ऊपर नहीं जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका टेबल बनाना आपको समझने के लिए वेरी सिंपल हो जाएगा। राइट डाउन दैट इज नाउ कंपनी मैन्युफैक्चर करता है क्या एक नट्स, ठीक है नट्स और एक बोल्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज नट्स एंड बोल्ट्स। यहाँ पे क्वांटिटी कितना है दैट मीन्स मान लो एक्स एंड वाई क्वांटिटी आपको मालूम नहीं है, ठीक है
क्वांटिटी कितना है, दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, मशीन ए, लुक एट दिस, दैट इज it takes 1 hour work on machine A and 3 hours of machine B to produce the package of nuts। that means आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, that is machine, ठीक है, machine A and machine A जो टाइम लेता है कितना है A and machine B, ठीक है, and machine B that is the time। यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट रुपीस कितना होता है लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे एक्स वाई क्वांटिटी है, दैट इज 1 आवर्स ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, ठीक है, 1 आवर्स ऑफ मशीन ए एंड मशीन बी के लिए कितना आवर है, 3 आवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 3 आवर्स, ओके, 3 आवर्स। यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है, लुक एट दिस, ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ द 17.5 पर ऑन द नॉट्स के लिए कितना था, 17.5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड नेक्स्ट कितना आ जाएगा, बोल्ट, लुक एट दिस, इट टेक्स 3 आवर्स ऑफ द मशीन एंड 1 आवर्स ऑफ द मशीन बी produce the package of bolts, that is you can write 3 hours of the machine A के लिए and machine B के लिए कितना है, that is 1 hours। यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है, 7। आर यू गेटिंग में, ठीक है। एंड हाउ मैनी पैकेज टू ईच शुड बी प्रोड्यूस ऑफ ईच डे सो आज टू मैक्सिमाइज, आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा हिज प्रॉफिट इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट द मोस्ट कितना है, 12 आवर्स ए डे। कितना है, मशीन ए में कितना काम कर रहे हैं, दैट इज 12 आवर्स, ठीक है, मैक्सिमम। एंड मशीन बी कितना कर सकते हैं, दैट इज 12 आवर्स, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके, ये आ गया आपका मैक्सिमम। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी शो करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इनइक्वालिटी, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दिखाना पड़ेगा। दैट इज मशीन ए के लिए, ठीक है, मशीन ए के लिए दैट इज कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, यहाँ पे जो क्वांटिटी है, ठीक है, दैट इज 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई लेस देन कितना आ जाएगा, 12। यस और नो, that is x plus 3y less than equal to 12। are you getting my point। and machine b के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, that is 3x plus y less than equal to 12। यहाँ पे कितना है, maximum 12 आवर्स, मोस्ट ऑफ द 12 आवर्स ए डे, एक दिन में कितना है, 12 आवर काम कर सकते हैं। ये आ गया आपका इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट कितना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आता है कितना है, दैट इज लुक एट दिस, यहाँ जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो प्रॉफिट है उसका आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये आपका मेन चीज़ है, ठीक है, दैट इज प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ जेड इज इक्वल टू दैट इज 17.5x प्लस 7y, ठीक है, यूज एच पी क्या है, मैक्सिमाइज्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज द मैक्सिमाइज्ड, ओके। एंड यहाँ पे x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, दिस इज द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। आप इसको लिख सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, कैसे लिख सकते हैं, सो द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ओके, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम that is maximized z is equal to 17.5x plus 7y, yes, and subject to constraint कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x plus 3y less than equal to 12, okay, and 3x plus y less than equal to 12 and x and y greater than equal to 0। this is your final answer, okay, this is your final answer। now next question,
ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना पड़ेगा क्या ये आपको गिवन है, ठीक है। लुक एट दिस, रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फ्रूट, ओके, पी एंड क्यू। टू टाइप्स ऑफ फूड मतलब क्या है, पी एंड क्यू, इन सच वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सर सर्टन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए के लिए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द फूड पी कॉस्ट रेस्ट 60 पर के जी, ओके, पी कॉस्ट कितना है 60 पर के जी है, एंड फूड क्यू कॉस्ट 80 पर के जी, ओके। फूड पी कंटेंट्स 3 यूनिट्स पर के जी एंड विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर के जी ऑफ विटामिन बी के लिए, while फूड क्यू कंटेंट्स 4 यूनिट्स पर के जी, ओके, एंड विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स पर के जी ऑफ विटामिन बी। आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। आपको जो मिनिमम कॉस्ट है कि उसको आपको निकालना पड़ेगा। राइट डाउन द सॉल्यूशन, ओके। लेट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ फूड कितना है, दैट इज लेट क्वांटिटी ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फूड पी के लिए कितना है, मान लो लेट एक्स, ठीक है, मान लो कितना है एक्स, एंड क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू के लिए कितना है, मान लो वाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे गिवन, लुक एट दिस, द कंटेंट्स ऑफ द मिक्सर, द कंटेंट एटलीस्ट 8 यूनिट्स विटामिन ए के लिए एंड 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, बना लो एक टेबल, ओके, दैट इज नाउ कैन राइट this is the P and this is the Q, okay, this is the P and this is the Q, and यहाँ पे रुपीस और के जी आप लिख सकते क्या है, रुपीस और के जी, ठीक है, दैट इज कॉस्ट, ओके। यहाँ पे ए और विटामिन ए एंड यहाँ पे कितना है विटामिन बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विटामिन ए एंड विटामिन बी, ठीक है, विटामिन ए एंड विटामिन बी। नाउ लुक एट दिस, द 8 यूनिट्स ऑफ द विटामिन ए एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 8 यूनिट्स विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। फूड पी कॉस्ट ऑफ द 60 के जी, 60 पर के जी, एंड क्यू कॉस्ट कितना है 60 पर के जी। यहाँ पे पर के जी कितना है 60, कितना आ जाएगा पी के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 60 एंड क्यू के लिए कितना है 8, यस, दैट इज नेक्स्ट। फूड पी कंटेंट्स 3 यूनिट्स पर के जी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर के जी ऑफ विटामिन बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज विटामिन ए के लिए कितना है 3 एंड विटामिन बी के लिए कितना है 5। क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड while food Q contains 4 units per kg and vitamins A and 2 units per kg of vitamin B. Are you getting my point? That is, यहाँ पे कितना है ए के लिए, विटामिन ए के लिए 4 एंड विटामिन बी के लिए कितना है 2, यस, विटामिन ए के लिए 2। नाउ यहाँ पे लुक एट दिस, कंटेंट्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है, एटलीस्ट मतलब क्या है ग्रेटर देन, ओके, एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी के लिए कितना है 11 यूनिट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज नाउ यू कैन राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दैट इज विटामिन ए के लिए कितना है, दैट मीन्स 8 यूनिट्स, ओके, एंड विटामिन
विटामिन बी के लिए कितना है, दैट इज 11 यूनिट्स। ओके, 11 यूनिट्स। नाउ लुक एट दिस। नाउ यहाँ पे इनइक्वालिटी कितना आ जाएगा, इनइक्वालिटी कितना आ जाएगा, दैट इज इनइक्वालिटी आ जाएगा यहाँ पे। लुक एट दिस, विटामिन ए के लिए कितना है 3 है, ये तो कितना है, पी के लिए आप x लिए थे एंड क्यू के लिए कितना है y है, यस और नो, दैट इज यहाँ पे इनइक्वालिटी कितना आ जाएगा आपका विटामिन ए के लिए, दैट इज 3x। ठीक है, 3x प्लस 4y कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम कितना आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 8। ओके, विटामिन ए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज विटामिन ए के लिए। ओके, दिस इज द 8 कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट विटामिन बी के लिए कितना आ जाएगा 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 यूनिट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 11 यूनिट्स, दैट इज विटामिन बी के लिए द कांस्टेंट। Okay, now the x and y greater than equal to 0, yes or no, x and y greater than equal to 0, this is the नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहले आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, दैट इज यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना देते हैं पर केजी, दैट इज पी के लिए कितने 60 और क्यू के लिए कितना है 80। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप लिख सकते हैं, सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज आप लिख सकते हैं कॉस्ट जेड। ओके, कॉस्ट जेड इज इक्वल टू कितना है 60x प्लस कितना है 8y टू बी मिनिमम, यस और नो, दैट इज टू बी मिनिमम आपको निकालना पड़ेगा। यह मिल गया आपको इनइक्वालिटी, दैट मीन्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ये आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। उसका आप लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम में कैसे लिख सकते, सो द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ओके, linear programming problem, the minimization z, the minimum z is equal to 60x plus 80y, okay, 60x plus 80y, and subject to constraint, that is 3x plus 4y greater than equal to 8 and 5x plus 2y and greater than equal to 11, okay, and x y greater than equal to 0, always 0, that is this is a क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज द सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है, दिस इज द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, इट्स कॉल्ड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज डू ए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।